Good evening, everyone. Welcome to our channel UPSC Resolve. My name is Prankul. I hope you are practicing mains PYQs. So, this is the fourth session of mains PYQ Resolve series. I hope you have watched the previous three parts. These are very important. Please, you guys have to practice instead of taking many mocks. Before taking any other mocks, please practice mains PYQ. That is very important. Also, I will give daily. मतलब मैं रोज I will give 5 questions daily in the Telegram group. If you have not joined the Telegram group, please join the Telegram group. The link will be in the description, and I'll share this PDF also in the Telegram group. So आपको रोज 5 questions मैं दूंगा, आपको 5 questions practice करने हैं. Then next day I'll upload the answers. Also जो मैं the PDF that I'll share, जो मैं PDF share करूंगा ग्रुप पे, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में मेंस के PYQs के आंसर होंगे. So please हिंदी इंग्लिश both answers will be there in the PDF. In that will I will share in the Telegram group. So let's start. This is the fourth session. And this the topic of this session will be questions related to local self government of GS2. जो इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, दैट इज रिलेटेड टू GS2 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी. 5 questions. Let's start. Then question number is first. Analyze the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out. First statement is analyze the role. This is the first part. Then and bring out the pros and cons. Second is pros. Then third, cons. This is brainstorming. I hope when you read the question, तो identify the parts that question is asking. Then you have to write the answer. शुरू में question आ रहा है तो आपको around 40-50 seconds you have to give to the question and identify कि what is asking, what you have to write in the body. Cons of merging rural local bodies with urban local bodies. क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है अगर हम लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज इन दोनों को मर्ज कर देते हैं. और फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहे हैं, एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस. लोकल गुड गवर्नेंस में लोकल बॉडी का क्या रोल है, यू हैव टू राइट. इंट्रो में क्या करना है, इंट्रो शुड बी अ बैलेंस. यू हैव टू स्टार्ट विद 73rd एंड 74th अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी, लोकल बॉडी फॉर ग्रासरूट डेमोक्रेसी. So उसके बाद आपको बताना है कि इसका it has played important role in participation of people. However, there has been disadvantage and therefore there has been debate regarding regarding merging the rural local bodies and urban local bodies. That will be the introduction. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, introduction should be crisp, 2 to 3 lines. जो question पूछ रहा है उसको ही और how you have understood वो question को you have to write in the essence of the क्वेश्चन कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द बॉडी. तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि 73rd 74th बॉडी में रूरल इसकी बात की गई है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की को अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया था और इसने काफी बेनिफिट हुए ग्रासरूट डेमोक्रेसी के, कुछ एडवांटेज है पर देयर इज नाउ बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज देयर इज टॉक ऑफ मर्जिंग देम. तो ये बेसिकली आपको 2 to 3 लाइंस में सम अप कर देना है. देन बॉडी में फर्स्ट पार्ट इज रोल. Role में you have to write analyze the role of local body in providing good governance. How local bodies have provide good governance. You have to write the example. जैसे ट्रांसपेरेंसी प्रमोट किए, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी कैसे, मनरेगा वगैरह में सोशल ऑडिट्स वगैरह का प्रोविजन है. सो ट्रांसपेरेंसी. सेकंड, फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, देन सेकंड इज सर्विस डिलीवरी. काफी सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो मनरेगा एक्सेट्रा, अंत्योदय योजना एंड ऑल, वो सर्विस डिलीवरी लोकल सेल्फ बॉडी ही करती हैं. तो ये देन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. पार्टिसिपेटरी कैसे, देयर इज प्रोविजन ऑफ ग्राम सभा. तो ग्राम सभा के प्रोविजन की वजह से देयर इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. जो वो बनते हैं जितने भी डिसीजंस वगैरह होते हैं ग्राम सभा लेती है, तो वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. देन इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी. वो कैसे, देयर इज प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ SC ST वुमेन, तो इंक्लूजन है डेमोक्रेसी में. सो ये 4-5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट. रोल. देन यू हैव टू राइट प्रॉन्स. प्रोज ऑफ मर्जिंग लोकल बॉडीज विद अर्बन बॉडीज. क्या क्या बेनिफिट होंगे अगर रूरल बॉडीज और अर्बन बॉडीज को मर्ज कर दिया, क्या क्या हो सकता है. फॉर एग्जांपल दे शुड बी होलिस्टिक प्लान ऑफ एन एरिया. ऐसा क्या होता है कि अर्बन बॉडीज होती है, अर्बन बॉडीज के आसपास देयर आर स्मॉल 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 रूरल बॉडीज. तो यू कैन मेक होलिस्टिक प्लान ऑफ टोटल ऑल कोऑर्डिनेटेड प्लान ऑफ प्रॉपर फुल एरिया. जैसे दिल्ली के आसपास छोटे छोटे रीजन है तो उसको NCR बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन. उससे क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन बोलने से जो आसपास की लोकेलिटी है जैसे नोएडा हुआ उसके साथ होलिस्टिक प्लान बन सकता है. सिमिलरली हम यहाँ कर सकते हैं, सो होलिस्टिक प्लान बन सकता है. देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगा. इकोनॉमी ऑफ स्केल कैसे कि रूरल बॉडीज के लिए अलग सारे ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स वगैरह होते हैं और रूरल बॉडी के लिए अलग होते हैं, अर्बन बॉडी के लिए अलग होते हैं. अगर ये मर्ज कर देंगे तो देयर विल बी सेम सेट ऑफ ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बचेगा तो एक साथ वो हो जाएगा.
गवर्नमेंट का बेनिफिट होगा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल होगा, लेस कॉस्ट होगा। देन और क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जितने भी इश्यूज हैं अर्बन रूरल के, फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन हुआ, पोल्यूशन हुआ, दे कैन बी कोऑर्डिनेशन, तो काफी कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। पोल्यूशन, माइग्रेशन, ऐसे इशू को दे बोथ रूरल बॉडीज एंड अर्बन बॉडीज, इफ वी मर्ज देम तो दे विल बी बेटर कोऑर्डिनेशन। सो यू हैव टू राइट सच पॉइंट्स। देन देयर आर कॉन्स आल्सो। क्या क्या इश्यूज हैं मर्ज करने में? फर्स्ट, देयर विल बी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। क्यों? लोकल रूरल बॉडीज में अगर जो सरपंच एंड अदर मेंबर्स आर गेटिंग इलेक्टेड, दे विल बी अगेंस्ट इट, क्योंकि उनका फिर रूरल जो अर्बन के जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनका डोमिनेंस हो जाएगा, उनका से विल बी खत्म, दे विल गेट मोर कंपटीशन लोकल बॉडीज वाले। तो इस बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। सेकंड, जो रूरल एरियाज के ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम है, जो उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट विल बी सबमर्ज इन अर्बन। अगर अर्बन के साथ आप यू हैव मर्ज देम, तो रूरल एरिया के जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट विल बी सफर। तो ये इशू होगा। ऐसे यू कैन राइट सम अदर आल्सो इशू, वी विल डिस्कस इन द आंसर ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। देन कंक्लूजन विल बी balance. 2 to 3 lines conclusion. You can write from SDG ARC. ARC has recommended that instead of merging, we should there should be increased coordination between these bodies. So merging जैसा extreme step नहीं लेना है आपको. Conclusion should be a balanced one. Instead of merging, there are pros and cons. We can increase the coordination between these bodies. तो वो cons का आंसर ही हो सकता है. Let's start. Pause the video for 7 to 8 minutes and write the answer. Then restart. Let's start with introduction. The 73rd and 74th Amendment, these are keyword you have to write, granted constitutional status to Panchayati Raj institution and local urban bodies, institutionalizing grassroots democracy. Benefit बताना है. They are instrumental in delivering governance marked by participation, transparency, responsive accountability. बस ये small keywords रखना है. We will elaborate in the body. Then with growing urbanization, the idea of merging rural and urban bodies is being discussed for improved government. तो हमने इंट्रोडक्शन में एक ब्रीफ इंट्रो बता दी व्हाट यू आर गोइंग टू से इन द बॉडी. सो आई होप यू गॉट इट कि इंट्रो कैसे लिखना है. आपको एक ब्रीफ में आइडिया देना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू से इन द बॉडी. देन फर्स्ट इज रोल. रोल क्या क्या है? एम्पावरिंग डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग कैसे? जो लोकल बॉडीज हैं, दे कैन मेक देयर टेलर मेड सोल्यूशन, दे कैन मेक देयर टेलर मेड प्लान्स. देन फैसिलिटेटिंग डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज. कैसे? जो लोकल बॉडीज हैं, they are more close to the people. जो urban bodies में अगर state government है, they are not close to the people, but the local bodies are more close to the people. So it allows them to quick identification of services. क्या क्या issues people are facing, so they can come up with ideas, quick identification of service gaps and targeted intervention. तो particularly जो issue particular हो रहा है, तो local bodies are closer to people, they can identify and properly work on it. उस तरह से schemes and all implement कर सकते हैं. इसलिए in the constitution in our 11th and 12th schedule urban और rural bodies के लिए there are list of 29 and 14 subjects. तो उसमें sanitation, drinking water, primary education, ये वाले basic services हैं. ये एक local level पर ही आप implement कर सकते हो, क्योंकि यूपी की रूरल बॉडी में कुछ और इशू हो सकता है, या और हरियाणा की रूरल बॉडी में कुछ और. इवन इन यूपी ऑल्सो वन रूरल बॉडी में हेल्थ का इशू ज्यादा हो सकता है, अनदर बॉडी में सैनिटेशन. तो पर्टिकुलर टेलर मेड वो सोल्यूशन आपको चाहिए. देन प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. Currently with more than 32 elected representative, over 50 are women. जिसमें SC का भी पार्टिसिपेशन है, STs का भी पार्टिसिपेशन है, women's का भी पार्टिसिपेशन है. तो इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. देन एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. कैसे? बिकॉज ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ ग्राम सभा, वार्ड कमेटी, सोशल ऑडिट, पब्लिक हियरिंग्स होते हैं, इसकी वजह से देयर डिबेट, डिस्कशन एंड ऑडिट्स. देन कैटलाइजिंग डेवलपमेंट एट ग्रास रूट लेवल. कैसे? जो इस गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, वो लास्ट माइल डिलीवरी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करते हैं कि कम्युनिटी कैन बी ब्रॉट टुगेदर टू इंप्लीमेंट. तो वो जन भागीदारी हो सकती है. यू कैन यूज सच टर्म. कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज जन भागीदारी, क्योंकि लोकल रिप्रेजेंटेटिव आर एबल टू कन्विंस, मोबिलाइज पीपल टू इंप्लीमेंट स्कीम. देन नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ मर्जिंग रूरल एंड अर्बन बॉडीज. क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं दोनों को मर्ज करने से? एड्रेसिंग पेरी अर्बन गवर्नेंस गैप. जैसे कि अभी अर्बन बॉडीज है, उसके आसपास रूरल बॉडीज होती हैं, तो वो पेरी अर्बन एरियाज हैं, उसमें अभी प्रॉपर अर्बनाइजेशन हुआ है, प्रॉपर रूरलाइजेशन हुआ है, काफी इश्यूज फेस करते हैं. फॉर एग्जांपल जितना भी अर्बन एरियाज का वेस्ट आता है, वो देयर इज ह्यूज माउंटेन ऑफ दैट गार्बेज आउटसाइड द अर्बन एरियाज, इन ऑलमोस्ट इन टाउन एरियाज.
तो वहाँ वो पेरी अर्बन एरिया, वो टाउन वाले एरिया होते हैं, तो वो अर्बन एरिया के लाइक गार्बेज डस्टबिन की तरह ऐसे ट्रीट होते हैं। तो प्रॉपर उनका फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट होगा कि अर्बन एरिया और वो आउटसाइड पेरी अर्बन एरियाज में प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा इफ देयर इज मर्जिंग ऑफ अर्बन एंड रूरल बॉडीज। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, unified bodies can pool resources, personal and infrastructure, so reducing the cost and enhancing efficiency. This is basic. Then integrated regional plan, जैसे NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन पे, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिल्ली देयर इज NCR, उसका पूरा मास्टर प्लान होता है, सो दैट देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एरिया, सो देयर कैन बी रीजनल मास्टर प्लान लाइक दैट, so it can help in better infrastructure, education and health. Then fourth, institutional convergence for complex challenges. There are challenges like दोनों में coordinated, urban और rural area में migration का, pollution का, water management का, कि दोनों water table decrease हो रही है rural areas because of agriculture and rural area irrigation, urban water table भी decrease हो रही है, तो migration हो रहा है कि rural areas are moving to urban areas, तो they both have to come together and solve ना, so merging करने से this will also help. Then precedents in rural urban mission. There are government schemes which has tried to develop rural areas and urban areas together holistically. जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, ये ऐसा मिशन है जिसमें रूरल अर्बन का इंटीग्रेशन किया था, जिसमें स्पेशली फॉर क्लस्टर डेट है अर्बन लाइक फीचर बट आर ऑफिशियल इन ऑफिशियली रूरल, तो रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हुआ इस स्कीम से, SPMRM से. नेक्स्ट, देयर आर डिसएडवांटेजेस टू, देयर आर कुछ नुकसान भी हैं दोनों को मर्ज करने से. क्या क्या नुकसान है? डाइल्यूशन ऑफ लोकल आइडेंटिटी एंड कस्टमरी ट्रेडिशन. सो रूरल बॉडीज एक बहुत ही क्लोज नेट कम्युनिटी है कंपेयर टू अर्बन एरियाज. रूरल कम्युनिटी है क्लोज नेट, उनका ग्राम पंचायत होता है, कॉमन डिबेट डिस्कशन होता है हर चीज में, विच डज नॉट हैपन इन अर्बन एरिया. तो कुछ यूनिक कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम है, तो वो दैट विल बी डाइल्यूटेड बिकॉज इफ वी आर मर्ज्ड, अर्बन कस्टम डिसीजन विल बिकम डोमिनेंट. देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूरोक्रेटिक बर्डन, एक बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा ब्यूरोक्रेसी पे अगर वी क्रिएट सिंगल सेटअप बाय मर्जिंग. देयर विल बी ह्यूज लार्ज ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, और जो रिड्यूसिंग रिस्पॉन्सिवनेस, तो दे विल मोस्टली फोकस ऑन अर्बन पीपल रादर देन, क्योंकि वो बाइस रहता है, रादर देन फोकसिंग ऑन रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल में पोस्ट होने वाले विल फोकस ऑन रूरल एरिया. इफ यू मर्ज, तो दे विल फोकस मोर ऑन ब्यूरोक्रेट्स जो होंगे कॉमन, दे विल फोकस मोर ऑन अर्बन एरियाज, तो रिस्पॉन्सिवनेस कम होगा. देन अर्बन बाइस एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटी, दिस इज ट्रू. मतलब अधिकतर क्लाउड रूरल एरिया से आज के टाइम में भी करेंटली भी ऑल्सो सी अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट फास्ट होता है. रूरल एरियाज में देयर इज लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज, लाइक बेसिक हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज प्रायोरिटी गिवन टू डेवलप एरियाज, क्योंकि वहां से ज्यादा पैसा आता है, ज्यादा फंडिंग होती है. दैट्स व्हाई देयर इज अर्बन बाइस. देन लीगल एंड स्ट्रक्चर इनकम्पेटिबिलिटी. कैसे? 11th और 12th शेड्यूल में दोनों में अलग अलग डिस्टिंक्ट फंक्शन और स्ट्रक्चर दिया है, तो वी नीड टू ब्रिंग एन अमेंडमेंट जिससे वो मर्ज कर सकते हैं. That is a long process, so that is an issue. Then political resistance, जैसे मैंने बताया, there will be local leaders of rural areas that they will resist because their power will reduce. उनकी पावर कम हो जाएगी, तो वो तो नहीं चाहेंगे ना कि मर्ज हो जाए. Then conclusion, you have to write a crisp conclusion. Local bodies are critical for inclusive participatory governance. While merging, there can be benefit, but risk भी है, legal, administrative, representational. Second ARC का recommendation you can write कि इंस्टेड ऑफ मर्जर वी शुड परसीव फंक्शनल कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन. दोनों में कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट प्रूव टू बी एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट. So you have to write how it has not been able to function well. Critically examine the statement and give your views to improve the situation. First, this is a 10 marker question asked in 2017. This is the first part. You have to write how local government bodies have not been able to function properly, first part mein. Then in second part, you have to write the suggestion. This is second part. First part, you have to write has not proved effective, suggestion why it has not proved effective. Then you have to write the suggestion. This is second part. Intro mein balance 73rd 74th amendment say there was a local self government body, there it has performed certain important function, transparency, accountability, but currently they are facing many issues and challenges. फिर वो हम सारा we will discuss in the body में you have to write issues क्या क्या face कर रही है local self government body that we have discussed earlier also. फिर you have to give productive suggestion to overcome those challenges. Conclusion should be crisp, brief. Let's start. Pause the video for 7 to 8 minutes. Then write the answer. After writing it, start again. Let's start. Introduction. The 73rd and 74th constitutional amendment
aim to establish a robust system of local self-government governance in India through Panchayati Raj institution. Panchayati Raj institution के लिए local self amendments हुए. While the intent was to promote participatory democracy, accountability, grassroots development, the actual performance has often fallen short of expectation. तो introduction में you have to write the crux of the question जो आप अपनी बॉडी में बताने वाले हो तो वो पूरा बैलेंस रखना है. सिर्फ यू डोंट हैव टू राइट 73rd अमेंडमेंट है, पंचायती राज है, उसकी ये बेनिफिट. यू हैव टू राइट क्वेश्चन ने जो पूछा है, यू हैव टू एड्रेस द होल पॉइंट. लेट्स स्टार्ट. लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस हिंडरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. क्या क्या इश्यूज फेस कर रही है local self government body? Functional constraint कि there is 11th and 12th schedule जिसमें there is functions given 29 and 18 subject for 11th and 12th schedule local और urban bodies and ग्राम पंचायत के लिए, villages के लिए. बट वो स्टेट ने वो ही नहीं करा है, डेलीगेट ही नहीं किया है. इट्स ओनली इन द शेड्यूल कि सैनिटेशन हेल्थ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूरल एरियाज की, बट ये डेलीगेट ही नहीं किया है लोकल बॉडीज में. काफी स्टेट्स ने, मतलब केरला is performing well but other states have taken मतलब has not delegated the power that is given in the schedule. तो वो functions नहीं दिए, तो it's functional constraint. Then fiscal dependence. According to 15th Finance Commission, only 5 to 7% of total expenditure is managed by PRI, urban local government bodies. बाकी they are local bodies are dependent on center and state. वो खुद से उनका वो ही नहीं है, फाइनेंस ही नहीं है to perform better. क्योंकि देयर इज नीड फॉर मनी टू बिल्ड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कुछ भी सर्विस डिलीवरी के लिए, सैनिटेशन के लिए, बट उनके पास फंड इज वेरी लेस. दे आर डिपेंडेंट ऑन स्टेट जो बहुत डिले करती हैं और देन दे गिव लेस रेवेन्यू टू लोकल बॉडीज. देन कैपेसिटी डेफिसिट फॉर एग्जांपल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर्विस डिलीवरी के लिए, कुछ भी बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी तो वो अवेलेबल नहीं है. जो पर्सनल है वहां पर इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी एंड प्लान, दे आर नॉट फुल्ली properly trained. जितने भी वहाँ officers and all, they are not properly trained. Technical expertise is lacking. तो delivery proper planning नहीं कर पाते और proper service delivery नहीं होती. So there is capacity deficit. Then political interference and parallel bodies. There are many parallel bodies also local areas में. For example, we give the example of Delhi. Delhi में क्या है, municipality के अलावा there are many bodies जो ये housing, sanitation, जो water function municipality का zone है, but Delhi में क्या है, there is Delhi जल निगम, दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड, दिल्ली हाउसिंग सोसाइटी बोर्ड. तो ये अलग अलग बोर्ड्स हैं, वाइल देयर इज म्यूनिसिपल दिल्ली कॉर्पोरेशन अलग सेपरेटली, तो उसका फंक्शन अलग अलग बोर्ड्स ने ले लिया. तो दिस इज एन इशू, पैरेलल बॉडीज है. नेक्स्ट, वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म. जो ग्राम सभाएं और वार्ड कमिटीज हैं, दे आर मोस्टली डिसफंक्शनल, मतलब बहुत रेयरली दे मीट. जो भी डिसीजन होते हैं जो इलेक्टेड फ्यू पीपल होते हैं दे टेक, पर वो कमेटी में डिस्कशन, वार्ड कमेटी, ग्राम कमेटी, इसमें डिस्कशन नहीं होता है, तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती एंड देयर इज लॉट ऑफ करप्शन हियर. देन जेंडर एंड सोशल रिप्रेजेंटेशन. ऑल्दो 50% ऑफ रिजर्वेशन इज फॉर वुमेन, बट देयर इज कॉमन फिनोमेना ऑफ सरपंच पति. इवन वुमेन में भी जो दलित वुमेन होते हैं दे फेस लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देयर. मतलब आई सॉ वन वीडियो इन वन ऑफ द प्लेसेस, वहां पर वुमेन दलित सरपंच को people were treating very badly. मतलब she was elected but then she also faced discrimination elect होने के बाद भी. So this is an issue there which needs to be resolved. Then suggestion you have to give कि हम urban bodies को how can we make it effective. Full functional devolution की second ARC ने on पंच commission ने बोला है to work local government bodies to work as a self sustaining institution. They should be devolution of fund, function and functionality. ये 3 एप्स है, फंड, फंक्शन, फंक्शनली. आपको अपने नोट्स में प्रॉपर्ली यू हैव टू राइट व्हाट आर द इश्यूज इन फंक्शन एंड सजेशन ऑफ ऑल दीज 3. देन फिस्कल एम्पावरमेंट करना चाहिए लोकल बॉडीज को, ज्यादा टैक्स लगाने की. वी शुड गिव मोर पावर टू लोकल बॉडीज टू रेज टैक्सेस, यूजर चार्ज, प्रॉपर्टी चार्ज, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारे टैक्स देने का वी कैन गिव देम मोर पावर एंड मोर अनटाइड फंड्स वी शुड गिव टू लोकल बॉडीज. Then capacity building and digital governance. There is need for capacity building of the personnel there. For example, there is recommendation of Sumit Bose committee. You can quote such committee's name, Sumit Bose committee, that has said कि local cadre बनना चाहिए ऑफिसर्स का, जैसे IAS ऑफिसर है ऐसे दे शुड बी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी cadre जहाँ की पर्सनल को प्रॉपर्ली ट्रेन होना चाहिए. तो दैट इज द रिकमेंडेशन ऑफ डिजिटल गवर्नेंस. गवर्नमेंट की कुछ स्कीम भी है जैसे ई ग्राम स्वराज, स्वामित्व, डिजिटल यूएलबी पोर्टल, जिसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है. देन स्ट्रेंथन ग्राम सभा कमिटीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी इनके वो होना मीटिंग्स वगैरह हो, वो वी शुड मेक श्योर वो CCTVs एंड ऑल में हो.
देन एम्पावर लोकल रिप्रेजेंटेटिव। ट्रू, आज के टाइम में जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव को ओवर पावर डोमिनेंट कौन होते हैं, स्टेट लेवल के एमपीज एमएलएस, तो उनको एम्पावर करने की जरूरत है जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पेशली विमेन एंड जो मार्जिनलाइज सेक्शन के, दे शुड बी प्रॉपर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ फॉर देम। देन कंक्लूजन शुड बी अ बैलेंस्ड वन। Local self-government body is a constitutional ideal, but its practical realization remains weak because of insufficient devolution capacity, a renewed focus on institutional strengthening and financial autonomy and citizen engagement. You have to write such keywords कि ये जरूरी है in line with second ARC recommendation and SDG 16 strong institution. So if you take the name of ARC, नीति आयोग, SDG, अगर प्रॉपरली रिकमेंडेशन भी नहीं आता, इफ यू टेक द नेम ऑफ देम एंड अपने मन से मतलब वॉट एवर गुड थिंग्स आर देयर, इफ यू राइट इट यू विल स्कोर गुड मार्क्स। सो प्रेफरेबली यूज सच कीवर्ड्स, ARC रिपोर्ट, SDG, पंची कमेटी रिपोर्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेट इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर लोकल अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। जो स्टेट्स हैं इंडिया में, अगेन दे हैव एब्सॉर्ब्ड ऑल द पावर, दे डोंट वांट टू गिव द पावर टू लोकल रिप्रेजेंटेटिव टू लोकल बॉडीज functionally and financially. So first part will be functionally disempowerment. This is the first part, disempowerment. कैसे एम्पावर नहीं किया है, तो फंक्शनल डिसएम्पावरमेंट, देन सेकंड विल बी फाइनेंशियल डिसएम्पावरमेंट। तो यू हैव टू राइट फर्स्ट फंक्शनल डिसएम्पावरमेंट, सेकंड फाइनेंशियल डिसएम्पावरमेंट, देन थर्ड सजेशन। सी सिंस इट्स अ 10 मार्कर क्वेश्चन, 10 मार्कर क्वेश्चन में क्या करना है, फंक्शनल और फाइनेंशियल डिसएम्पावरमेंट के बाद सजेशन, जिससे आपका टाइम ज्यादा ना रहे, यू इट सो दैट इट वोंट टेक मच टाइम। ड्रॉ अ डायग्राम, हब एंड स्पोक डायग्राम और एनी डायग्राम यू कैन ड्रॉ एंड राइट सम शॉर्ट क्रिस्प सजेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कैसे करना है, सम स्मॉल सजेशन बाय थ्रू डायग्राम, जिससे इट विल गिव गुड इंप्रेशन। देन कंक्लूजन। सो इंट्रो में आपको यू हैव टू राइट इंट्रो क्रिस्प कि कैसे फाइनेंशियल 74 अमेंडमेंट में स्टेटस दे दिया, गुड थिंग्स आर हैपनिंग, ग्रासरूट डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन एंड ऑल, but there is still issue in functional and financial disempowerment. Then first part, functional disempowerment, you have to write how functional disempowerment, we have discussed it before too, कि there is 11th and 12th schedule, उसमें 29, 18 ये वो है points हैं, पर sanitation, health and all, पर state bodies have not devolved them. बाकी function में you have to write कि capacity building नहीं हुई है, awareness नहीं है, training नहीं है, what else you can write, there are functions जो म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शन होते हैं, अदर बॉडीज लाइक पैरास्टेटल बॉडीज, जैसे दिल्ली जल निगम, दिल्ली डेवलपमेंट हाउसिंग सोसाइटी एंड ऑल, दे आर परफॉर्मिंग, तो उनका जो फंक्शन है वो किसी और ने यूसअप कर लिया है, तो यू कैन राइट सच एग्जांपल, सच पॉइंट्स। देन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बताने की पहली बात, लोकल बॉडीज को देयर इज लेस पावर टू टैक्स, यानी जीएसटी आने के बाद और भी काफी पावर लोकल बॉडीज के टैक्सेशन के ले लिया। देर आर मोस्टली टाइड एंड टाइट फंड का इशू होता है कि अधिकतर जो लोकल बॉडीज को ग्रांट होता है वो टाइड होता है, वो इशू है, बहुत कम ग्रांट मिलता है उनको लोकल बॉडीज को। देयर इज प्रोविजन फॉर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, लोकल बॉडीज म्यूनिसिपल बॉन्ड रेज कर सकते हैं, बट वो रेज इसलिए नहीं कर पाते, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, मतलब उनके पास इतना फाइनेंस नहीं है टू रेज द बॉन्ड, तो वो कैपेसिटी फाइनेंशियल बैकिंग होनी चाहिए स्टेट की, सेंटर की। तो यू कैन राइट सच पॉइंट्स फॉर फाइनेंशियल डिसएम्पावरमेंट। देन यू हैव टू राइट द सजेशन क्या होंगे, जो आपने डिसएम्पावरमेंट बताया उसी का सजेशन यू हैव टू गिव, टेक द नेम ऑफ अकॉर्डिंग टू सेकंड ARC नीति आयोग रिपोर्ट एंड ऑल। देन कंक्लूजन शुड बी अ बैलेंस्ड वन। लेट्स स्टार्ट, pause the video for 8 to 9 minutes, then restart and watch the session. You have to write all these answers before by yourself first. First, introduction. The 74th Constitutional Amendment Act sought to institutionalize urban local bodies as the third tier of governance. This is, such words are very important to write. Take a note of it कि अगर ऐसा question आ रहा है तो you have to write such intro and conclusions. Yet many states exhibit hesitance in empowering urban local bodies, both functional and financially, limiting their role in urban governance. Next, body. First, you have to write financial empowerment of local bodies. Incomplete devolution, जो 18 फंक्शन है और जो 12th शेड्यूल में वो डिवॉल्व भी नहीं करे अर्बन लोकल बॉडीज को। देन पैरेलल एजेंसीज हैं, पैरेलल एजेंसीज जैसे वाटर बोर्ड, दिल्ली का एग्जांपल लिया, जल निगम, दिल्ली हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटी, ये सब उसके फंक्शन है म्यूनिसिपैलिटी के, बट पैरेलल बॉडीज आ गई जिसमें अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे उनका रोल हो गया। देन कैपेसिटी बिल्डिंग, जो शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड अर्बन प्लानर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ट्रेन स्टाफ हैं,
सर्विस डिलीवरी, तो अर्बन बॉडीज इसलिए ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है कि देयर आर नो प्रॉपर इंजीनियर अर्बन प्लानर्स. Then delayed election and committee. In some state, municipal elections are delayed. Ward committees are either inactive or dysfunctional. जो ग्राम सभा जो वार्ड कमिटीज की बॉडी है म्यूनिसिपल, काफी डिलेड इलेक्शन होते हैं तो डिसफंक्शनल है. देन टोकनिस्टिक रोल इन स्कीम, जो फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की स्मार्ट सिटी अमृत मिशन, उसमें अर्बन लोकल बॉडीज का दे आर ओनली एक्ट एज एग्जीक्यूटिव रादर देन डिसीजन मेकर. उनसे मतलब लोकल रिप्रेजेंटेटिव आर मोर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लोकल पीपल, बट उनका डिसीजन मेकिंग रोल में कोई रोल मेकिंग में रोल नहीं होता है. पॉलिसी बनाने में उनका रोल सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग देम. देन फाइनेंशियल डिसएम्पावरमेंट, लोकल लो ओन रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, अर्बन यूजर फी, ये लोकल बॉडीज हैं वो प्रॉपरली टैक्स नहीं करती हैं पीपल को, क्योंकि दे आर मोर कनेक्टेड टू लोकल पीपल. इफ दे टैक्स हायर, प्रॉपर्टी टैक्स या यूजर फी चार्ज लेंगी तो पीपल विल नॉट इलेक्ट देम अगेन. तो जो लोकल बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव है वो ये टैक्स ये चार्ज हाई ज्यादा नहीं करते हैं लोकल रिप्रेजेंटेटिव. देन नेक्स्ट, डिलेड एंड कंडीशनल ट्रांसफर, जो गवर्नमेंट की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है वो टाइड होती है और बहुत डिले होता है ट्रांसफर में. देन नेक्स्ट, वीक क्रेडिट एक्सेस, जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू कर सकती है बट क्रेडिट रेटिंग बहुत लो होती है क्योंकि उनके पास फाइनेंस प्रॉपर नहीं होता, तो दे आर नॉट एबल टू प्रॉपरली इंप्लीमेंट दिस म्यूनिसिपल बॉन्ड्स. देन नेग्लेक्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो स्टेट इरेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन. बहुत बायस बॉडी होती है स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो सेंटर स्टेट अपॉइंट करता है गवर्नर के थ्रू. तो इसमें इसकी जो रिकमेंडेशन होती हैं वो ऑलमोस्ट 10 खारी होती हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता इनकी रिकमेंडेशन का, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता. कभी कभी ये स्टेट फाइनेंस कमीशन बॉडी बहुत डिले देती है, रिपोर्ट देती है, तो उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता. देन पॉलिटिकल रिलक्टेंस, सबसे पहले तो सेंट्रलाइजेशन माइंडसेट डिस्करेजेस एम्पावरिंग रूरल बॉडीज. ये सबसे ज्यादा इशू है कि सोल्यूशन इज देयर बट पीपल शुड हैव द विल, आवर पॉलिटिकल लीडर्स नीड टू हैव द विल. Then suggestion, there you have to write the suggestions. You can present it in the form of diagram also. Implement full devolution 12 schedule. जो 12 शेड्यूल के जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, you need to properly transfer the power to local bodies on them. Then revive and empower state finance commission. उनकी जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होनी चाहिए, जो भी रिकमेंडेशन है that should be binding. Then property tax reform. Property tax reform जैसे जो इंट्रोड्यूस GIS बेस्ड असेसमेंट, जो ग्लोबल वो सिस्टम है पूरा प्रॉपर्टी को डायग्नोस करने के लिए, कि क्योंकि प्रॉपर्ली लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर्टी को कम बताते हैं, तो जीआईएस बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए. इंसेंटिवाइज एफिशिएंट कलेक्शन एंड पॉलिटिसाइज टैक्स रिविजन, क्योंकि टैक्सेशन प्रॉपर्टी टैक्स का सालों से सेम ही रह रहा होता है, मतलब अपग्रेडेशन नहीं होता, रिविजन नहीं होता, बिकॉज दे वांट टू टेक द रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट वांट टू टेक द एंगर ऑफ पीपल इंक्रीज करने से प्रॉपर्टी टैक्स का. देन एनकरेज लोकल बॉन्ड मार्केट, कैपेसिटी बिल्डिंग उसकी होनी चाहिए, स्टेट बैक कर सकती है उनको लोकल बॉडीज को, जिससे उन्हें इजीली क्रेडिटिंग अच्छी हो और दे आर एबल टू रेज फंड थ्रू बॉन्ड्स. देन स्ट्रेंथन ह्यूमन रिसोर्सेज, दिस इज इंपॉर्टेंट. सुमित बोस कमेटी ने बोला कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी का कार्डन होना चाहिए, उनको प्रॉपर्ली ट्रेन होना चाहिए, लिटरल हायरिंग्स होनी चाहिए, अर्बन मास्टर प्लानर्स, इंजीनियर्स, दे शुड बी ट्रेन्ड वेल. देन स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर वार्ड कमिटीज, ensure their regular functioning and mandate citizen participation through rule. प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होनी चाहिए कि सीसीटीवी वार्ड कमिटीज में जो डिसीजन वगैरह होंगे सीसीटीवी कमेटी हो, रेगुलरली उनका फॉर्मेशन हो. देन इंस्टीट्यूशनलाइज रोल इन अर्बन मिशंस, उनका दे शुड बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. अमृत वगैरह जैसे जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऐसे प्रोग्राम्स में अर्बन लोकल बॉडीज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, दे शुड बी इन्वॉल्वमेंट. देन second ARC recommendation, empower local bodies as institution of self government with fund function functionalities. ये आप लास्ट में उसमें कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं. देन कंक्लूजन, urban local bodies are at the forefront of India's urban transformation but remain institutionally weak. Realizing the vision of democratic decentralization required state to embrace the true federal spirit by empowering local bodies in both letter and spirit. So balance the positive futuristic suggestion you have to give. Then question number 4. To what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India has changed the governance landscape at the grassroots level? So you have to write some positive. To what extent? First, you have to write intro. It should be a
फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए. इट शुड एक्सप्लेन व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग. मतलब इंट्रो में क्या लिखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, इससे सम बेनिफिट्स हुए हैं, ग्रासरूट डेमोक्रेसी जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, बट देयर आर सर्टेन इश्यूज. हाउ टू व्हाट एक्सटेंट एन ओपिनियन हैज चेंज्ड गवर्नेंस लैंडस्केप. सो देयर हैज बीन लॉट ऑफ चेंजेस, बट देयर हैज बीन सम मेनी थिंग्स दैट हैज रिमेन स्टैटिक, जो चेंज नहीं हुए हैं. मतलब नेगेटिव हुआ है पर पॉजिटिव चेंजेस नहीं हुए हैं. तो बैलेंस्ड इंट्रोडक्शन देना है. Then in conclusion, then in body, decentralization की positive changes you have to write, negative you have to write, and then suggestion you have to give. Previously, like we have discussed, then conclusion should be balanced. There should be a balanced futuristic conclusion. Let's start. Introduction, same. 73rd and 74th Constitutional Amendment institutionalized local self-government body. For it has deepened democracy, service delivery, but it has brought a noticeable shift in governance. कुछ पॉजिटिव हुए हैं, like participatory local self government body, greater accountability. Structural challenges persist. तो हमने इंट्रो में बता दिया कि in the body we are going to write positives and negatives. First, transformative impact क्या हुआ है? Positive. ग्रासरूट डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं, सर्विस डिलीवरी बेटर हुई है, जैसे मनरेगा स्कीम में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो वो सर्विस डिलीवरी बेटर हुई है. पार्टिसिपेटरी प्लानिंग जैसे ग्राम सभा, वार्ड कमेटी, सोशल ऑडिट. देन विमेन लीडरशिप एंड इंक्लूजन, सिमिलरली दलित्स एंड ऑल का भी, SC ST का भी इंक्लूजन हुआ है. देन फास्टर रिड्रेसल ऑफ लोकल इश्यूज, bureaucratic delays come away because it is closer to people. They are able to implement faster delivery of services. Then structural challenges. You have to write the challenges. Challenges वही 3F fund function का issue है, capacity building issue है, ग्राम सभा properly meet नहीं करती, training नहीं है, corruption है, parallel bodies हैं. So such suggestion you have to write. We have discussed all of them. Then you have to write suggestion. Earlier we have discussed challenges. Now you have to write suggestion. सजेशन देना है, वही जो इश्यूज आपने बताया है, जस्ट उसका ही प्रॉपर फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन देना है. जैसे 11th और 12th शेड्यूल का पूरा प्रॉपर डेलीगेशन हो फंक्शंस का. देन सेकंड ARC में जो रिकमेंडेशन है, सेकंड ARC की रिकमेंडेशन फॉर एग्जांपल रिकमेंड्स परफॉर्मेंस लिंक ग्रांट फॉर बेटर यूटिलाइजेशन. परफॉर्मेंस लिंक ग्रांट को देना चाहिए लोकल बॉडीज को, जिससे बेटर यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो. दैट यू हैव टू राइट. देन एनहेंस कैपेसिटी बिल्डिंग, जो मैंने बताया सुमित बोस कमेटी, उसने बोला था लोकल कार्डर बनना चाहिए और उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऑफिशियल्स की, इंजीनियर्स, मास्टर प्लान प्रॉपर हो. देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे GIS मैपिंग वगैरह, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह के लिए. देन लीगल मैंडेट फॉर वार्ड कमेटी एंड ग्राम सभा, इंश्योर रेगुलर मीटिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. देन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर, दिस इज इंपॉर्टेंट. जो भी सजेशन है एजुकेशन, हेल्थ वगैरह में, उसमें सबसे पहला सजेशन लिख सकते हो कि IAS की तरह से इंडियन एजुकेशन सर्विस, इंडियन हेल्थ सर्विस, इंडियन लोकल बॉडी सर्विस ऐसे बना सकते हैं. देन जेंडर एंड marginalized empowerment program, जो SC ST हैं, दलित हैं, उनको you need to make them aware about their role, about their rights. प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे वो प्रॉपर they can become efficient leaders. Then conclusion should be balanced कि जो urban bodies हैं, it has deepened democracy. However, functional autonomy of financial resources, institutional support के बाद they only became symbolic. तो सेकंड ARC पंची रिकमेंडेशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए फॉर मेकिंग देम जेन्युइनली एम्पावर्ड, इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंट. ये कंक्लूजन यू कैन राइट इन योर नोट्स एंड रिप्रोड्यूस इट इन द एग्जाम्स. देन क्वेश्चन नंबर 5, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज हैड अ लिमिटेड इम्पैक्ट. मतलब रिजर्वेशन हमने वुमेन का कर दिया है, वुमेन इलेक्टेड हो गई है, बट इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड हुआ है ड्यू टू पेट्रियार्कल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. फर्स्ट यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से सम फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट हुई है. देन इंट्रोडक्शन में ही नेगेटिव लिखना चाहिए, बट देयर हैज नॉट बीन ट्रू एम्पावरमेंट, दैट इज एन इशू. देन यू हैव टू राइट बॉडी में फर्स्ट यू हैव टू राइट द पॉजिटिव एम्पावरमेंट, वुमेन होने से पॉजिटिव चेंजेस आए. जैसे वुमेन आर मोर फोकस्ड ऑन वुमेन सेंट्रिक स्कीम, जैसे सैनिटेशन हुआ, एजुकेशन हुआ, जो वुमेन रिलेटेड है, मतलब मोर इंपॉर्टेंट है वो. वुमेन लीडर्स इमर्ज हुई है, वुमेन की ट्रेनिंग बेटर हुई है, वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ है. ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स यू हैव टू राइट. Then there are issues जैसे सरपंच पति का फिनोमेना हुआ है, issue of women not especially SC ST women, they are facing more marginalization, properly women trained नहीं है, they are not able to take effective decision. You have to write such points कहाँ पर lacking है. रिजर्वेशन के बाद भी there has been not proper empowerment. Then you have to write the suggestion, जैसे networking होनी चाहिए, there are training programs for women, तो proper training होनी चाहिए. Then conclusion should be balanced. Let's start with intro.
The 73rd and 74th constitutional amendment mandated one third of reservation in women. You have to write this thing in Panchayati Raj institution and local urban local bodies under articles 243D and 243D. अगर ये नहीं है तो you can skip it. It's not मतलब don't be too concerned about such article 243. There are many articles, but जो key articles है vice president governor वो थोड़े पता होने चाहिए. पर urban local bodies में ये सारे इतने articles की जरूरत नहीं. You should remember the name of the amendments. Significantly enhancing women's numerical representation. However, the broader impact of on patriarchal political structure remains partial and uneven. So हमने बता दिया कि patriarchal political structure की वजह से there has been not properly the empowerment of women. You have to write first positives women के representation बढ़ने से पहले democratization of political spaces. For over 14 lakh women, including from SC/ST community, participate in governance. So this is a very good new phenomenon. Then policy focus on women-centric issues. For example, there is research of Chattopadhyay and Duflo that women-led panchayats invested more in water, sanitation, education, area which directly impact women life. This is a positive change. Then leadership and empowerment. जो women जो elect होती हैं, they empower other women and they take leadership position. They further get elected in state. वो एक लॉन्चिंग पैड होता है लोकल बॉडीज में women elect होती हैं, then they go for state elections, लोकसभा elections and all. So they became good leadership quality develop होती है. Then representation role model. They became women leaders. They became role model for younger generation, for younger women also. When women get selected. Then constitutional and legal backing. These reservations provide institutional safeguard against inclusion and have been upheld by judiciary to promote substantive equality. Women empowerment is an example of substantive equality. Then persistence in patriarchy and structural challenges. But there are challenges also. For example, first is Sarpanchpati syndrome. Ki women get elected, but all the decision, all the work is carried out by their husband only. Women को सिर्फ signature के लिए बुलाया जाता है. Then बहुत अच्छी सीरीज है पंचायत. If you guys would have seen it, पंचायत के नाम से उसमें almost यही phenomena ही बताया गया है. Then capacity gaps. Limited training and bureaucratic apathy weakens women's ability to take decisions. So women are not properly aware about their role, about their power. They are not properly trained about जितने भी rules, regulations and all होते हैं. Then social resistance and bias. Obviously, we live in a male dominated society, so there is stigma towards women taking decisions. Then tokenism and lack of power. Often women are given posts without control over finance, staff, agenda setting, reducing them only to rubber stamp. Then limited vertical mobility. Even despite women getting elected, around 45-50% women are getting elected local body, पर वो mobility नहीं है, वो urban logically state election में ज़्यादा women का participation होना चाहिए. Still women का local bodies में है, पर state legislature जिसमें 9% है और लोकसभा में only 15%, less than 15% है, so it remained low. This is an issue why women are not able to rise from local bodies to state and central level. You can brainstorm and write points on this. Maybe UPSC ask it. Then measures to strengthen. क्या क्या measure ले सकते हैं? Implement the Women Reservation Act 2023. Government ने ये act बना दिया. It has been passed. But अगर ये Women Reservation Act, if it sees the day of the light of the day, then रिजर्वेशन हो जाएगा women के लिए 33%. तो जो local bodies में women है, they will be motivated more to participate in politics because they will have the provision की 33% reservation central level पे है, तो they will participate in state election and central election also. तो जिससे इससे local women भी motivate होंगी काफी ज्यादा local bodies में participate करने के लिए and to have aspire to rise above the local bodies also. Then strengthen training and institutional capacity. जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग होनी चाहिए. वहाँ जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनका भी स्टिग्मा इतना होता है कि वो विमेन सरपंच से डिसीजन वो नहीं लेना, ऑर्डर्स नहीं लेते. तो जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टाफ की. डिजिटल एक्सेस मेंटरिंग विमेन की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए. देन कर्ब प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन लीगली. देयर शुड बी सम लॉ ऑन दिस. देन इनेबल फाइनेंशियल एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी. विमेन को प्रॉपर फंक्शनल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, प्लस शी शुड हैव पावर टू यूज funds for development of local bodies. Then encourage political parties to promote women leaders. This is important. हर political parties को कुछ ना कुछ अपनी within the party reservation देना चाहिए women को कि they will field this number of women in their from their parties. Conclusion. जैसे BJD
TMC वगैरह, they give more tickets to women. That is a good phenomenon. Then conclusion. Despite increased representation, women's effective participation in local bodies is curtailed by structural patriarchy. जो question है उसका essence हमने body में बता दिया. And then in conclusion also, lasting change demands capacity building होनी चाहिए, gender sensitive reform होनी चाहिए, decentralization, autonomy होनी चाहिए to bring real empowerment. Real empowerment जरूरी है, सिर्फ symbolic नहीं होना चाहिए. So this is the end of the session. I'll share the next 5 questions in the Telegram group. अगर आपने join नहीं करा है, please join it through Telegram. The link in the description. If you like this session, please like, share, and subscribe. बाकी I'll be bringing more videos on strategy and main cheat code series. I will also start soon. Please practice mains PYQ. All the best. Let's meet in the next session.